નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગયા વિડીયોની અંદર આપણે જે છે પાઠ 15 દાજ્યું જે છે એ જોયો હતો. એ પાઠ અધૂરો હતો, તે આજે આપણે પૂર્ણ કરશું. ગયા લેક્ચરમાં આપણે જોયું કે મદન જે છે એક પહાડી બાળક છે અને તે જે છે એ અલમોડા ગામનો રહેવાસી છે અને તે પોતે જે છે એક શ્રમજીવી છે, એટલે કે બાળ મજૂરી કરવા માટે શહેરમાં આવ્યો હોય છે અને શહેરમાં જે છે એને એક હોટલની અંદર તે જે છે એ કોફી હાઉસની અંદર જે છે બોય તરીકે કામ કરે છે અને જગદીશ બાબુ પણ આ શહેરની અંદર જે છે એ નોકરી કરવા માટે આવ્યા હોય છે અને તેઓ પણ જે છે એ અલમોડા પહાડી પ્રદેશના રહેવાસી છે. જ્યારે શરૂઆતમાં તેઓ પહેલીવાર અહીંયા શહેરમાં આવે છે ત્યારે તેમને બહુ એમ એકલતા જે છે એ અનુભવાય છે. પછી જ્યારે તેમને મદન સાથે એમનો પરિચય થાય છે ત્યારે મદન જે છે એ કહે છે કે હું પહાડી પ્રદેશનો રહેવાસી છું અને જગદીશ બાબુ પણ પહાડી પ્રદેશના રહેવાસી છે. બંને વચ્ચે જે છે એ ઓળખાણ થાય છે, બંને વચ્ચે મિત્રતા થાય છે અને આ જે છે બાળક મદન જે છે સાવ એકલો છે અને તેનું પોતાનું આ શહેરમાં કોઈ જ નથી. તેથી તે જગદીશ બાબુને પોતાના જ એક દાજ્યું એટલે કે મોટા ભાઈ તરીકે માન આપે છે અને વારંવાર જે છે એ દાજ્યું કહીને એમને બોલાવે છે અને તે પોતાના મનના જે છે ભાવ જે છે એ અભિવ્યક્ત કરે છે અને દાજ્યું કહીને તે એટલો બધો જે છે ખુશ થઈ જાય છે કે મારા આ શહેરની અંદર એક મોટા ભાઈ પણ છે. ધીરે ધીરે જે છે જગદીશ બાબુને આ દાજ્યું નામ જે છે એ ગમતું નથી, કારણ કે તેઓ મધ્યમ વર્ગી એક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છે. તેમના મનમાં એવું લાગે છે કે મારા જે ઓફિસના લોકો જે છે એ મને કોઈ જોશે અને કોઈ મને કહેશે કે તારો આ જે છે હોટલમાં કામ કરનારો વ્યક્તિ જે છે તારો ભાઈ છે. આમ માની અને તેઓ જે છે એ ગુસ્સે થાય છે. તેમને દાજ્યું કહેવું પસંદ નથી હોતું, કારણ કે તેઓ મધ્યમ વર્ગના વ્યક્તિ છે. મધ્યમ વર્ગના લોકો જે છે એમના મનમાં જે છે માન પ્રતિષ્ઠાનો ભાવ વધુ હોતો હોય છે. તો અહીંયા જગદીશ બાબુ જે છે તેમના મનમાં પણ એક એવો ભાવ ઉઠે છે કે હું એક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છું અને મારી જે છે પ્રતિષ્ઠા જે છે પ્રેસ્ટીજ એટલે પ્રતિષ્ઠા, મારી પ્રતિષ્ઠા જે છે ખરાબ થઈ જશે. કોઈ મને એમ કહેશે કે આ મદન જે છે એ નોકર જે છે એ તારો ભાઈ છે. આવું સાંભળી અને તેમના મનમાં જે છે ગુસ્સો આવે છે અને તે જે છે એક દિવસ જે છે મદનનું ખૂબ અપમાન કરે છે અને તેને કહે છે કે બીજી બધી વાત જવા દે, પરંતુ આજ પછી તું મને દાજ્યું ના કહીશ. દાજ્યું એટલે મોટા ભાઈ, આવું તું મને ના કહીશ, કારણ કે મારી પ્રતિષ્ઠા જે છે ખરાબ થઈ જશે, મારી પ્રેસ્ટીજ ખરાબ થઈ જશે. તો અહીંયા મદન જે છે એને પ્રેસ્ટીજ શબ્દનો અર્થ પણ નથી ખબર, એટલો એ નાનો બાળક છે, પરંતુ એના મોઢાના હાવભાવ ઉપરથી, જગદીશ બાબુના મોઢાના હાવભાવ ઉપરથી તે અનુમાન લગાવે છે કે જગદીશ બાબુને આ જે છે દાજ્યું કહેવું પસંદ નથી. તે દિવસે એને કામમાં પણ મન નથી લાગતું અને તે જે છે એક અંધારી કોઠરીમાં જઈ અને ખૂબ રડે છે અને રડવાથી એવું કહેવાય છે કે આપણા મનના ભાવ જે છે, પ્રેમ જે છે અને જે આપણા મનમાં આવેશ છે એ ઓછો થઈ જાય છે. તો અહીંયા જગદીશ બાબુના અપમાનથી જે છે એ તેની જે છે મદનના બાલ માનસ ઉપર ગંભીર અસર થાય છે અને તે આંસુ દ્વારા જે છે એ પોતાનો પ્રેમ જે છે એ વહાવી દે છે અને પછી પૂર્ણ જે છે સ્વસ્થ પણ થઈ જાય છે. તો અહીંયા જે છે એ હવે આપણે પાઠની આગળની કહાની જોશું કે પાછળ શું થાય છે. मदन पूर्ववत काम करने लगा. दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई. कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है. दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया. आज उसके मुंह पर वो मुस्कान न थी और न ही उसके क्या लाओ दाजू कहा. स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा कि 2 चाय और आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो.
दूसरे दिन क्या होता है कि मदन जो है वो बहुत रोया हुआ था और रोने के कारण उनके मन के भाव जो है वो शांत हो गए थे और दूसरे दिन वो काम में लग जाता है। और सुबह में जगदीश बाबू जैसे ही कैफे हाउस में प्रवेश करते हैं तो उसका एक बचपन का मित्र जो होता है हेमंत, उससे उनकी भेंट हो जाती है और वो हेमंत को भी चाय कॉफी पीने के लिए आग्रह करते हैं और दोनों कॉफी हाउस में आ जाते हैं। वह दूर से मदन को बुलाने के लिए इशारा करते हैं, लेकिन जैसे मदन ने उनको देखा ही नहीं है। आज उनके मन में जो दाजू का भाव था वह नहीं था। मदन जो है वह अपने काम में लग जाता है और उनकी ओर देखता भी नहीं है। फिर जगदीश बाबू उसे बुलाते हैं कि इधर आओ मदन, इधर आओ। तभी मदन वहां जाता है और यहाँ वह कोई बातचीत नहीं करता है और कुछ बोलता भी नहीं है। और जगदीश बाबू सामने से ही उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मदन मेरे लिए 2 चाय और 2 आमलेट लेकर आओ। और लाया दाजू कहने के बजाय लाया साहब कहता है। मदन जो है उसके मन में आज भी जो है वो गहरा घाव लगा हुआ है, इसलिए वह कुछ भी बोले बिना ही वह यहाँ से जगदीश बाबू के पास खड़ा रहता है। और जगदीश बाबू जब उससे कहते हैं कि 2 चाय और 2 आमलेट ले आओ, तभी लाया दाजू कहने के बदले लाया साहब कहता है और फिर वह वहां से चला जाता है। ऐसा लगता है दोनों अपरिचित हों। पहले तो क्या होता था कि जब जगदीश बाबू आते थे तो मदन के चेहरे पर एक मुस्कान सी रहती थी और वह इतना खुश हो जाता था, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास है। जगदीश बाबू को देखकर भी उसे प्रसन्नता नहीं हो रही है, जैसे कि उसे लग रहा है कि इस शहर में उसका कोई नहीं है। फिर वह अकेला हो गया है और वह चुपचाप वह ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है, जैसे दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़ियां हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी हुई रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने ग्राहक के स्वर में फिर दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। थोड़ी देर बाद मदन जो है वह चाय और 2 आमलेट लेकर आ जाता है और वहां रख देता है। और तुरंत ही जो उसका मित्र था, जगदीश बाबू का मित्र जो था हेमंत उससे तुरंत पूछता है। उसकी बोली जो है, उसकी भाषा जो है, उसकी भाषा को देखकर कहता है कि शायद तुम पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले हो। तो यहाँ पर मदन जो है वह कुछ उत्तर नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है और जगदीश बाबू भी अपना सिर झुकाकर अपनी चाय की ओर देख रहे थे और सिर ऊंचा नहीं कर पा रहे थे। और मदन ने क्या किया, वह अतीत में खो जाता है कि एक बार ऐसे ही जगदीश बाबू ने उससे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम शायद पहाड़ी प्रदेश का रहने वाले हो, ऐसा पूछा था। और इस प्रकार से अपनापन हो गया था जगदीश बाबू के साथ और वह मदन जो है वह जगदीश बाबू को अपना बड़ा भाई मानने लगा था। उसके आंखों के सामने वह विगत समय की जो है यादें जो है ताजा हो जाती हैं। एक बार जगदीश बाबू ने उसे पूछा था कि तुम पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है, मदन है। और उसके बाद उसको दाजू बनाया गया। और एक बार इसी जगदीश बाबू ने फिर से उसको अपमानित किया था और कहा था कि किसी की प्रेस्टीज का ख्याल करो। यहाँ प्रेस्टीज का मतलब भी मदन जो है वह जानता नहीं था। और यहाँ फिर से
एक बार हेमंत ने उसे वही पूछा कि तुम शायद पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ मदन जो है वह बहुत जो है व्याकुल हो जाता है। उसके मन में जो है फिर से वह भाव उभर आते हैं जिस प्रकार जगदीश बाबू ने उसे अपना बनाया और फिर उसे ठोकर मार दी। ये छोटा सा बालक है, उसके हृदय पर कितने बाल मानस पर कितना गहरा असर हुआ था, और वह अकेला था। और जगदीश बाबू ही एक ऐसे थे जो उसको शहर में अपने लग रहे थे और उसे अपना बड़ा भाई बनाया था। आज फिर से वह अकेला हो गया है। फिर वह हेमंत को उत्तर देता है कि यहाँ पर साहब मुझे बॉय कहकर बुलाते हैं, कॉफी हाउस में सब लोग मुझे बॉय कहकर बुलाते हैं। और उसने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि नाम बताता तो फिर से वह अपनापन जाग उठता और फिर अपमान हो जाता था। इसलिए मदन जो है वह कहता है कि मेरा नाम यहाँ बॉय है और सब लोग मुझे बॉय बताते हैं। जगदीश बाबू ने क्या किया कि वह उनकी ओर जो है देखने लगे, मदन की ओर देखा तो उसका मुंह जो है वह गुस्से से लाल हो गया था। उसका चेहरा तो गोरा ही था और गुस्से में उसका चेहरा जो है लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज्वालामुखी सा वह फट पड़ेगा और अभी कुछ बोल उठेगा, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है। और गुस्से में उसका चेहरा जो है अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। जगदीश बाबू जो है उसको देख लेते हैं कि वह दिखने में कैसा लग रहा है, गुस्से में है या कई बार हम मुंह के हाव भाव को जानकर पता लगाते हैं कि भाई गुस्से में है या मूड अच्छा है। तो यहाँ पर मदन जो है वह गुस्से में लाल हो जाता है, उसके कारण उसका चेहरा जो है अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जगदीश बाबू और मदन का परिचय होता है और दोनों एक दूसरे को अपना मानते हैं और दोनों ही एक ही प्रदेश के रहने वाले हैं। अंत में क्या होता है कि जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कार वाले व्यक्ति थे। मध्यम वर्ग में क्या होता है कि मान प्रतिष्ठा की बहुत चिंता रहती है, कोई उनको भला बुरा कहे वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मध्यम वर्गीय जगदीश बाबू जो है उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे जो ऑफिस के कुछ लोग मेरे साथ आएंगे तो वे क्या सोचेंगे कि एक नौकर जो है होटल में काम करने वाला जो लड़का है वो क्या उसका भाई होगा। इसके कारण उनकी प्रतिष्ठा जो है वो खराब हो जाएगी, इसलिए वे मदन को जो है अपमानित करते हैं। यहाँ मदन अपने भोलेपन में जो है जगदीश बाबू को अपना बड़ा भाई मानता है, लेकिन उसके बाल मानस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो यहाँ जो है एक कहानी जो है वो बाल फिल्म के लिए भी फिल्माई गई है। तो अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ कुछ पाठ के विशेष बिंदु हैं। तो मदन एक श्रमिक बालक है जो पहाड़ी प्रदेश का रहने वाला है। जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कार वाले व्यक्ति हैं। मदन जगदीश बाबू को अपना दाजू यानी कि बड़ा भाई मानता है। अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। मदन का गांव किस पहाड़ी प्रदेश में है? उत्तर है मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी प्रदेश में है।
कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो उत्तर है नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। बॉय बताया। जो होटल में काम करते हैं उसको बॉय कहा जाता है, इसलिए वो अपना असली नाम नहीं बताता है। क्या बताता है? बॉय नाम बताता है। जो ऑफिस में जो नौकर होते हैं या किसी होटल में काम करने वाले लोग जो होते हैं उसे हिंदी में बॉय कहा जाता है। ऑफिस बॉय या फिर वेटर बॉय कहा जाता है। पहाड़ी भाषा में बड़े भाई को क्या कहा जाता है? पहाड़ी प्रदेश में बड़े भाई को दाजू कहा जाता है। पहाड़ी प्रदेश में बड़े भाई को क्या कहा जाता है? तो दाजू कहा जाता है। अगला है पहाड़ी प्रदेश में मां को क्या कहा जाता है? मां को क्या कहा जाता है? उत्तर है पहाड़ी प्रदेश में मां को ईजा कहा जाता है। ईजा कहा जाता है। पहाड़ी प्रदेश में छोटी बहन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है पहाड़ी प्रदेश में छोटी बहन को भूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूली कहा जाता है। पहाड़ी प्रदेश में बहन को क्या कहा जाता है? तो भूली कहा जाता है। जगदीश बाबू के व्यवहार से
व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? चोट क्यों लगी? उत्तर है जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट लगी, क्योंकि जगदीश बाबू ने अपनत्व पर प्रहार किया था। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? क्योंकि जगदीश बाबू ने मदन के अपनत्व पर प्रहार किया था। फिर से देख लेते हैं, मदन का गांव किस पहाड़ी प्रदेश में है? तो मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी प्रदेश में है। कहानी के अंत में नरेंद्र हेमंत को मदन ने अपना क्या नाम बताया? तो कहानी के अंत में हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया था। पहाड़ी प्रदेश में बड़े भाई को क्या कहा जाता है? पहाड़ी प्रदेश में बड़े भाई को दाज्यू कहा जाता है। पहाड़ी प्रदेश में माँ को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ी प्रदेश में माँ को ईजा कहा जाता है। पहाड़ी प्रदेश में छोटी बहन को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ी प्रदेश में छोटी बहन को भूली कहा जाता है। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? क्योंकि जगदीश बाबू ने मदन के अपनत्व पर प्रहार किया था। तो अगले कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। मदन के गांव का नाम क्या था? मदन के गांव का नाम क्या था? तो उत्तर है मदन के गांव का नाम लोटिया लगो था। अगला है मदन अपने गांव का नाम क्यों नहीं बताना चाहता? क्यों नहीं बताना चाहता था? मदन अपने गांव का नाम क्यों नहीं बताना चाहता था? उत्तर है मदन अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता था। नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसके गांव की संख्या अर्थात नाम निराला था। उसे बताने में
से संकोच हो रहा था, संकोच हो रहा था। उसके गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे बहुत शर्म आ रही थी, संकोच हो रहा था, इसलिए वह अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता था। उसके गांव का नाम था डोटिया लगो। ऐसा नाम जो है निराला है, इसलिए वह बताने में जो है वह संकोच कर रहा था। अगला है मदन का गांव अल्मोड़ा से कितनी दूर था, कितनी दूर था। उत्तर है मदन का गांव अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर था। पंद्रह 20 मील दूर था। अल्मोड़ा से मदन का गांव जो है वह 15-20 मील दूर था। जगदीश बाबू को पहले नए शहर में कैसा लग रहा था? जब जगदीश बाबू पहली बार शहर में आए तो उनको कैसा लग रहा था? तो उत्तर है जगदीश बाबू को नए शहर में बिल्कुल अपनापन नहीं लग रहा था। उन्हें यह शहर यहाँ के कॉफी हाउस, होटल और लोग अनजाने लग रहे थे। वे इस शहर में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे।
जगदीश बाबू इस शहर में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। उनको कॉफी हाउस, होटल और लोग बिल्कुल अनजाने से लग रहे थे। कुछ और प्रश्न को देख लेते हैं। जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर डांटा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रेस्टीज जो है, यानी कि प्रतिष्ठा जो है वह खराब हो जाएगी। इसके कारण उन्हें मदन को डांटा था। प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था, क्योंकि वह शहर में बिल्कुल अकेले थे और मदन एक ऐसा था जो उसके पहाड़ी प्रदेश का रहने वाला था। इसके साथ उनको अच्छी मित्रता हो गई थी और उससे बातचीत करते थे। इसलिए शुरुआत में जो है मदन जो है उनको दाजू कहने लगा, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। दाजू कहानी में बाल मानस की संवेदना का मानविक चित्रण हुआ है, यह समझाइए। मदन एक 9-10 साल का एक श्रमिक बालक है और वह शहर में जो है किसी कॉफी हाउस में जो है बॉय की तरह जो है काम करता है। उसका अपना कोई नहीं है और वह बिल्कुल अकेला है। उसके माँ और बाबा जो है वह पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले हैं। और जब जगदीश बाबू उसे बताते हैं कि वह भी एक पहाड़ी प्रदेश अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, तो मदन को ऐसा लग रहा है कि वह उनके दाजू यानी कि बड़े भाई के समान है और उससे दाजू कहकर बुलाने लगता है। और बाद में जगदीश बाबू उसको अपमानित करते हैं और कहते हैं कि किसी की प्रेस्टीज का ख्याल करो और दाजू कहकर मत बुलाओ। ऐसा कहने से उसके बाल मानस पर गहरा असर होता है। तो यहाँ पर हमने पाठ 15 जो है दाजू यानी कि बड़ा भाई, जिसमें बाल मानस की कहानी को हमने पढ़ा है। इस पर एक छोटी सी फिल्म भी बनाई गई है और यहाँ पर छोटे से बालक जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं और वे कभी भी किसी बात से जो है वह अनजान होते हैं। यहाँ मदन जो है वह अकेला था और उसने जगदीश बाबू को एक बड़ा भाई माना, लेकिन जगदीश बाबू जो है वह एक मध्यम वर्गीय संस्कार वाले व्यक्ति थे। उनको मान प्रतिष्ठा की बड़ी पड़ी होती है, इसलिए वह दाजू कहने पर उसे डांटते हैं। उसके कारण जो है मदन के बाल मानस पर बहुत बुरा असर होता है। तो यहाँ तक हमने पाठ में अच्छा देखा। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे और नए पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।